Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Capricorn Ascendant and the predictions for the month of July 2023. So we will first start with the Ascendant Lord. The Ascendant Lord for your Ascendant is Saturn and it is passing through the second house of self-earned wealth, family and finance. It entered here in January of this year and it is going to stay here till the middle of 2025. Now Saturn is sitting in its own sign, which means that it will continue to give you opportunities to earn money through a lot of hard work and self effort. And the more the hard work you do, the higher is the proportion of the money that you make. Coming to the month of July, the first 9 days of the month, so time frame from 1st to 9th of July will be mentally very taxing for you. And the good thing about your ascendant is that most of the Capricorn ascendant people are habitual of taking mental pressure. And if you try to explore your spiritual side of life during these first 9 days, then this time frame will actually be very good for you. After this time frame from 10th of July to 5th of August is going to be extremely good for you to take a long distance trip or travel. Now, this trip could be personal in nature or it could be related to work, but you should definitely see yourself packing bags and leaving to a place which requires a long term traveling. Now, as I said earlier, Capricorn ascendant people have the habit of taking their life very, very seriously, and you guys are very determined to rise to the top of the tree. So, this month is all about shedding your serious disposition and looking at the lighter side of life. Planets will also give you an opportunity to explore some new areas through traveling and also spend some time with your near and dear ones. I know a lot of people of your ascendant who have risen to the top of the tree, especially those who have the ascendant in the degrees between 21 to 30 degrees and who have Mars or Rahu in their 10th house. Such people usually go places in their lives. Venus is going to be in your 8th house from 7th of July to 6th of August, and it is going to combine with Mars here. Venus indicates luxury and Mars indicates aggression and speed. So you need to be very careful and you should avoid driving from 7th of July to 6th of August because the combination of these two planets in the 8th house usually creates accidents. It will be nice if you can ask someone else to do the driving for you during this time frame. Thus avoid this propensity of causing accidents which has been created in the month of July. Venus, as I said earlier, is in the 8th house and it also owns the 5th house. So, 5th house lord in the 8th house is not at all a good position if you talk about the professions that are related to 5th house. So, people who are in education or people who are artistic in tendency, they will also face hindrances in the month of July. But the biggest damage that may occur would be for people who are in speculation. The 5th house lord in 8th has the tendency to cause massive losses to people, and speculation obviously has the upside to it, but it also indicates a very strong downside. So all those people who are in speculation should stay away from the market in the month of July. On the contrary, if you're a student who loves to do research or who is interested in learning mystical arts or even astrology or something like a Reiki, or any new technological advancement, if they are doing some kind of a courses in automotive or industrial field, then the month of July will be very good for such people and it is going to provide them an optimum learning environment, and to pursue such opportunities would be of great benefit to them. The sixth house lord Mercury will be transitioning through the seventh house from 8th to 24th of July, and then it will move to the eighth house where it will remain till 30th of September. So, in the month of July, all those people who want to do well in their jobs or who want to switch jobs, I don't see any such good opportunity arising in the month of July. In fact, after a Mercury shift to the 8th house on 25th of July, all of you should remain cautious towards your workplace. You should be very careful about who you speak to in your professional domain and what you speak to,
because there is a possibility that what you speak may be used against you. Apart from this, there are also certain days where you need to remain cautious, and these are the dates when you should avoid taking key decisions, and you should also not get into arguments with people. So for your ascendant, these dates are 2nd and 3rd of July, 15th and 16th of July, 20th, 21st and 22nd of July, and 30th and 31st of July. So just remain cautious during these 9 days, but this month is all about exploring your lighter side, and time frame from 10th of July to 5th of August is all about traveling, exploring new avenues, and spending time with your loved ones. So that's the summary for you for the month of July. And if you have liked my video, I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न करें कि मकर लग्न वालों के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, अगर हम लग्नेश की बात करें तो लग्नेश शनि द्वितीय भाव से भ्रमण कर रहे हैं, अपने ही स्थान से गुजर रहे हैं। तो लग्नेश जब भी द्वितीय में जाता है तो व्यक्ति को कोई ना कोई पैसा कमाने के मौके ज़रूर प्रदान करता है। और चूंकि ये शनि है तो आपको मौके मिलेंगे, लेकिन देरी से, और पैसे का जो इकट्ठा होने का जो सीन है वो भी बहुत धीरे धीरे होगा। तो यहाँ पे आपको जब से शनि इस राशि में आया है द्वितीय भाव में, जनवरी 2023 से सितंबर 25 तक, ये आपको कई बार मौके देगा धन कमाने के, धन संचय करने के। अभी आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत इस समय में कर पाते हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे उसी के हिसाब से आपको धन संचय करने में भी ये शनि मदद करेगा। अगर हम जुलाई के महीने की बात करें तो पहले 9 दिन आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बनते हैं, और पहले 9 दिनों में आपको सावधान रहना चाहिए। लेकिन अगर हम मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न के लोग ज़्यादातर पेसिमिस्टिक आउटलुक के होते हैं, क्योंकि शनि इनका रूलर है। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने इच्छा शक्ति के दम पे ऊपर उठते हैं। अगर आप साइन भी देखें तो मकर का वो एक पर्वत पे चढ़ता हुआ एक बकरा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके हुए ऐसे लोग टॉप पे पहुँचते हैं। और मैं बहुत से मकर लगने के लोगों को देखता हूँ जो कि कंपनीज में या सोशल हायरार्की में ऊपर बैठते हैं। बहुत धीर गंभीर स्वभाव के होते हैं और इनका बहुत आउटलुक सीरियस होता है जीवन के प्रति। और इस महीने में आपको इसी के उल्टा करना है। 10 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक का समय ऐसा है जब आपको लॉन्ग टर्म ट्रैवल करने के मौके बनेंगे, लंबी दूरी की यात्राएं जिसे हम कहें हिंदी में तो। और आपको अपने जो भी आसपास के लोग हैं जिनके साथ आपको समय बिताना अच्छा लगता है, जिनकी कंपनी आपको अच्छी लगती है, उनके साथ भी इस समय में समय बिताना चाहिए। आपकी अगर ट्रैवलिंग प्रोफेशनल लेवल पर भी होती है, लेजर ट्रिप नहीं है, तो भी आप उन लोगों को अपने साथ ले जाइए, परिवार के या दोस्तों को, और उनके साथ इस समय को आप एंजॉय कीजिए। 10 जुलाई से 5 अगस्त तक का समय ऐसा है जब आपकी ट्रैवलिंग होती हुई दिखती है, और आपको ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मौका मिल रहा है तो ज़रूर आप इस समय में ट्रैवलिंग करें। इसके अलावा अगर हम बाकी ग्रहों को भी देखें तो शुक्र अष्टम भाव में बैठ गया है आके, और यहाँ पे ये 7 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक बैठा रहेगा। अब शुक्र और मंगल की जब भी युति होती है या ये प्रतियुति में होते हैं तो ऐसे समय में अगर अष्टम भाव भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो व्यक्ति के एक्सीडेंट होने की संभावना बड़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अच्छा रहेगा कि आप इस समय अपना वाहन स्वयं ना चलाएं, किसी के पीछे बैठ जाइए अगर टू व्हीलर है तो, या गाड़ी में ही बैठते हैं फोर व्हीलर में तो किसी और को गाड़ी चलाने दीजिए। 7 जुलाई से 6 अगस्त तक आप स्टेयरिंग व्हील से दूर रहिए, क्योंकि शुक्र आपकी गति दिखाता है और मंगल अग्रेशन दिखाता है। तो ऐसे समय में आपको व्हीकल चलाने से तो दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो ये शुक्र मंगल की युति अष्टम भाव में आपका एक्सीडेंट कराने की भी क्षमता रखती है। इसके अलावा शुक्र आपके लिए पंचम भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो पंचम भाव से देखी जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, खास करके जो भी लोग शेयर बाजार से संबंधित रहते हैं, उनको इस समय में जुलाई के महीने में मार्केट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव व्यक्ति को एकदम से होने वाला लाभ या अचानक से होने वाली हानि दोनों दिखाता है। तो अगर हम कॉशियस अप्रोच लेके चलें तो शेयर बाजार में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उन लोगों के लिए जो सीजन प्लेयर्स नहीं होते। तो यहाँ पर अगर आप शौकिया तौर पर स्टॉक मार्केट में रहते हैं तो इस समय में मार्केट से बाहर निकल जाइए। ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके लिए शेयर मार्केट में पैसा कमाने की दृष्टि से। इसके विपरीत अगर आप छात्र हैं
और आप रिसर्च से संबंध रखते हैं या फिर आप ऐसी किसी फील्ड में हैं जो अष्टम भाव से संबंध रखती है, यानी अगर इस समय में आप ज्योतिष्य सीखना चाहें, रेकी सीखना चाहें, वो किसी भी तरह की ऐसी कोई नई टेक्निक सीखना चाहें जो कि ऑटोमोबाइल से संबंध रखती है, या फिर आप कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो ये समय बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। जुलाई का महीने में आपको इस तरह के मौके मिलते हैं तो उन्हें ज़रूर परसू कीजिए, क्योंकि आप इस महीने में जो भी सीखेंगे ये आपको आगे चल के भी बहुत काम आएगा। तो सीखने के लिहाज से इन एरियाज में जो मैंने बताए और अष्टम भाव से जुड़े हुए जितने भी एरियाज हैं उनके बारे में अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो आपको भी पता लगेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इन एरियाज में अपना नॉलेज बढ़ाने के लिहाज से। आपके लग्न के लिए बुध षष्ठेश होते हैं और षष्ठेश बुध सप्तम भाव से भ्रमण करते रहेंगे और 24 जुलाई तक बुध सप्तम भाव में ही बैठे रहेंगे, और इसके बाद ये 25 जुलाई से लेकर सितंबर के अंत तक अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो जितने भी सर्विस पेशा लोग हैं उनके लिए जुलाई के महीने में ऐसी कोई कार्य क्षेत्र पे तरक्की करने का कोई समय नहीं है। जो आप कर रहे हैं रूटीन मोनोटोनस वही काम आपका आगे भी बरकरार रहेगा। इनफैक्ट जब बुध आपके 25 जुलाई को अष्टम भाव में चले जाएंगे तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्यस्थल पे आप किससे क्या बात करते हैं, क्योंकि आप ही की कही हुई बात आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। मकर लग्न के लोगों के वैसे भी कॉरपोरेट इसमें बहुत सारे दुश्मन होते हैं वर्ल्ड में, क्योंकि ये लोग एम्बिशियस होते हैं और ये अपने कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जो इनसिक्योर लोग होते हैं उनके लिए ये एक खतरा बन जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने नौकरी के स्थल पे किससे क्या बात करते हैं, और खास करके 25 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। अभी हर महीने में आपको कुछ सावधान रहने वाले दिन भी मैं बताता हूँ। तो ये दिन आपके लग्न के लिए हैं 2 और 3 जुलाई, 15 और 16 जुलाई, 20, 21 और 22 जुलाई, और 30 और 31 जुलाई। इन 9 दिनों में खास करके ना तो किसी के साथ उलझिए और अपनी सेहत का भी इस समय में आप ख्याल रखिए। अगर आप देखिए तो इस महीने में 10 जुलाई से लेके पूरा महीना यानी 5 अगस्त तक का समय ऐसा है जब आपको कहीं बाहर जाने का मौका मिलेगा। तो आप कार्य क्षेत्र की वजह से बाहर जाएं या अपनी लेजर ट्रिप पे बाहर जाएं, अपने साथ जिन लोगों की संगति आपको पसंद है उनको ज़रूर ले जाएं, नई जगह एक्सप्लोर कीजिए। और इस महीने में वो कीजिए जो कि आपके लगने के लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, यानी कि मस्ती करना और मौज मजा करना। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।